Good morning, my dear students, and welcome to today's class. Dear students, I hope that all of you are fit and fine in your homes and you all are taking care of yourself and the people around you. Dear students, these days it is very important that we all follow the precautions regarding the prevention of the spread of COVID 19. Also, dear students, vaccine is available. So, encourage the people around you to get vaccinated. If everybody gets vaccinated, then I'm sure we will be able to meet very soon. Dear students, one of the most important things that is going on these days is your notebook submission. So, I would like to remind you that please come to school and submit your notebook if you have not done that already. Notebook submission is highly important, and that's why it should be done by all of you. Because remember, if you will not submit your notebook, you will not get any marks in your internal assessment. Okay? So that's 20 marks for you if I talk about English. And if I talk about all your other subjects, that's over 100 marks. Okay? So, dear students, please share the hard work that you have done with us these days and bring your notebook to the school. Now, dear students, in today's class, we will be reading the chapter Ishwaran, the Storyteller by R.K. Lakshman. Who was R.K. Lakshman? R.K. Lakshman was a very famous cartoon artist. Okay, he used to make cartoon in Times of India. Okay, his daily cartoon was named The Common Man, and he even won the prestigious civilian award of Padma Shri. Okay, so he is a very well-known personality, a very famous personality, and he has written this amazingly funny story, Ishwaran the Storyteller. So Ishwaran, obviously it's a name, very common name in South India. What we say as Ishwar in Hindi, that becomes little bit mixed in the Tamil dialect, and then it becomes Ishwaran. Okay, so Ishwaran the storyteller. Who is a storyteller? A storyteller is a person who tells stories, as simple as that. Okay, the term itself is very clear. Okay, so Ishwaran is a storyteller. Okay, what is there in his story? Let's read and find out, dear students. All of you, please open your supplementary reader book, Moments, and take out chapter number 3, Ishwaran the Storyteller. It is on page number 13. Okay, so before you read is there, let's address it. One night, Mahendra woke up from his sleep and saw a dark, cloudy form. He broke out into a cold sweat. Was it a ghost? So, we have been given some information that there was a certain night and Mahendra woke up. Okay, Mahendra was the character in the story. Okay, and when he woke up, then what happened? He saw a form. So when he saw that form, he felt that it was a ghost. Okay, and obviously, if you will see a ghost, you are bound to get nervous, है ना? आप भी nervous हो जाएंगे और आपको भी लगेगा कि अरे ये क्या हुआ, ये क्या चीज है ना? सो उसी तरीके से महेंद्र को भी ऐसा लगा. अब हमें ये देखना है कि वॉज इट अ गोस्ट. हमें जब चैप्टर हम रीड करेंगे तब हमें ट्राई करना है ये फाइंड आउट करने का दैट वॉज द फॉर्म which was seen by Mahendra, was it a ghost? Okay, so let's read and find out. The story was narrated to Ganesh by a young man, Mahendra by name. He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisors at various types of construction sites. So ये जो स्टोरी है इससे
गणेश को किसने सुनाया? एक यंग मैन ने, और उसका नाम क्या है? महेंद्र। सो महेंद्र ही यूज्ड टू वर्क फॉर दिस फर्म। फर्म का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन। ओके, कोई भी कंपनी, ओके, जो काम करती है, जो प्रोफेशनली काम करती है, वो उसे हम फर्म कहते हैं। सो उसका काम क्या था? इट ऑफर्ड ऑन हायर। ऑन हायर मीन्स कि जो हम किराए पे देते हैं, जो हम उधार देते हैं, लेंड करते हैं किसी को, तो ऑन हायर वो सुपरवाइजर्स देती थी कंपनी एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स, factories, bridges, dams, and so on. Mahendra's job was to keep an eye on the activities at the work site. So महेंद्र का एक टिपिकल काम क्या था? वो हर रोज क्या काम करता था कि जो भी वहां पे एक्टिविटीज चल रही है उस पे उसका काम था नजर रखना कि क्या सब लोग जो हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं. He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office. So Mahindra has to move from one place to another because वो उसकी जॉब की डिमांड थी. ओके, एवरी नाउ एंड देन का मीनिंग मतलब कि उसको बहुत ही शॉर्ट पीरियड्स ऑफ इंटरवल पे बहुत ही कम टाइम स्पेंड करने के बाद ही उसे मूव करना पड़ता था. वाई? बिकॉज दिस वॉज द ऑर्डर as per the head office. Okay, from a coal mining area to a railway bridge construction site, from there after a few months to a chemical plant which was coming up somewhere. So फिर उन्हें कहा उसे कहीं पे कभी उसे एक रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट पे भेज देते या फिर जहाँ पर एक केमिकल प्लांट आ रहा होता था थोड़े टाइम में. ओके, तो बेसिकली उसे जहाँ पे भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हो रही होती, जहाँ पे भी ये काम चल रहा होता, उसे वहां पर भेजा जाता था एज अ सुपरवाइजर. ही वॉज अ बैचलर. बैचलर का मतलब क्या है? अनमैरिड. ओके, ही वॉज एन अनमैरिड पर्सन. उसकी कोई शादी नहीं थी. ओके, उसकी कोई वाइफ नहीं थी. His needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions. So Mahindra, his needs were simple. Simple means वो ज़्यादा demanding नहीं था nature wise. Okay, उसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था. उसे simple सी basic चीजें चाहिए थी and he was satisfied. And he was able to adjust himself to ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस. कोई भी परेशानी वाली चीज होती, कोई भी मुश्किल वाली चीज होती, कोई भी स्ट्रेंज चीज होती, तो वो उसके साथ खुद को एडजस्ट कर लेता. वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस और अ मेकशिफ्ट कैनवस टेंट इन द मिडल ऑफ अ स्टोन वॉल. सो चाहे कोई एक खराब सा सर्किट हाउस क्या होता है? एक रेस्ट करने के लिए प्लेस बनाया जाता है, जो इंडस्ट्रियल जहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री लगी होती है, उन लोगों के ही जो उस इंडस्ट्री में काम करते हैं उनके रेस्ट करने के लिए एक प्लेस होता है. ओके, चाहे वो कोई इल इक्विप्ड मतलब जहाँ पे कोई अच्छी सी फैसिलिटीज नहीं थी, वो उस टाइप का एक सर्किट हाउस होता था, या फिर कोई मेकशिफ्ट कैनवस का टेंट होता था. कोई मेकशिफ्ट होता है जो बस ऐसे ही बना दिया. ओके, जो परमानेंट नहीं होता. ओके, तो जो स्ट्रक्चर एक नॉन परमानेंट स्ट्रक्चर टेंट भी लगा देते तो वो उसमें भी सरवाइव कर जाता. और अ मेकशिफ्ट कैनवस टेंट इन द मिडल ऑफ अ स्टोन क्वारी. क्वारी क्या होती है? वेयर स्टोन्स आर डग आउट. ओके, हमेशा याद रखना, कंफ्यूज मत होना क्वारी और माइन के बीच. माइन जो होती है वो अंडरग्राउंड होती है, उसमें से कोई भी उसमें से क्या मिलते हैं? ओर्स मिलते हैं. ओके, आयरन ओर हो गया या कॉपर का ओर जो होता है वो मिलता है. जबकि क्वारीज जो होती हैं वहां से क्या निकलते हैं? स्टोन्स निकलते हैं. ओके, क्वारीज में से स्टोन निकलते हैं. और इसीलिए क्वारीज के आसपास आपने देखा होगा हमेशा वाटर का भी एक स्ट्रक्चर रहता है, क्योंकि जहां से स्टोन निकलते हैं वहां पर पानी आ जाता है. ओके, वहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है, बिकॉज वो नेचुरल सरफेस नहीं होती ना, क्योंकि वहां से स्टोन एक्सट्रैक्ट हो चुका है. माइंस में आपको पानी नहीं मिलेगा. इनफैक्ट माइंस में अगर पानी घुस जाए तो वो तो फिर एक्सीडेंट हो जाएगा बहुत बड़ा, राइट? तो
क्वारीज में हमेशा स्टोन्स निकलते हैं and they have a sort of a small pond in that area. Okay, but one asset he had was his cook Ishwaran. Now the title which is given to us is Ishwaran the storyteller, and here we meet Ishwaran for the first time. Okay, here we are meeting Ishwaran for the first time. And who is Ishwaran? Ishwaran is the cook of Mr. Mahendra. जो महेंद्र है इसका cook है. The cook was quite attached to Mahendra and followed him uncomplainingly wherever he was posted. So जो cook था वो बहुत ज़्यादा attached था किसके साथ? मिस्टर महेंद्र के साथ. ओके, और बिना कोई कंप्लेन करे उन्हें फॉलो करता था जहाँ पे भी मिस्टर, क्योंकि ऑब्वियसली वी हैव लर्नड दैट मिस्टर महेंद्र ही मूव फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड एंड द कुक ऑल्सो यूज टू मूव अनकम्प्लेनिंगली. कुक भी बिना कोई कंप्लेन करे मूव करता था. He cooked for Mahindra, washed his clothes and chatted away with his master at night. So अब एक कुक है तो उसका कोई खास क्या काम होगा? उसको सिर्फ he used to cook, okay, उसके क्लोथ्स भी वॉश करता था and he used to chat and he chatted away with Mahindra. महेंद्र के साथ बातें करता था. Okay, he could weave out endless stories and anecdotes on varied subjects. So he could weave out endless stories. Weave out means make. He could make endless stories. एक बहुत सारी कहानियां बना सकता था और बहुत सारे anecdotes थे उसके पास. Anecdotes क्या होते हैं? A story about a person. किसी person के बारे में जो कोई कहानी होती है, okay? किसी इंसान के बारे में जो कहानी होती है वो anecdote होती है. So अब ईश्वरन का, इसीलिए हमने उसे क्या कहा, टाइटल में भी हमने उसे क्या कहा, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, बिकॉज ही कुड मेक आउट स्टोरीज एंड ही कुड मेक एनेक्डोट्स. ओके, और वो भी कोई एक नहीं कि उसके पास हमेशा सुनाने के लिए एक ही स्टोरी होती थी, नहीं. ही यूज्ड टू मेक स्टोरीज ऑन वेरिड सब्जेक्ट्स. डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर वो डिफरेंट स्टोरीज बनाता था. ओके, Ishwaran also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere. अब अगेन देखो, ईश्वरन का अगर कैरेक्टर स्केच आ गया तो हमें उसकी ये जो क्वालिटीज है उसके बारे में जो चीजें हैं हमें पता होनी चाहिए. एक तो वो स्टोरी टेलर है, ठीक है, दैट इज हिज वन क्वालिटी. अदर क्वालिटी इज ही इज वेरी रिसोर्सफुल. ओके, seemingly out of nowhere, कहीं पे भी वहां पे आपको कोई दुकान नहीं दिखेगी. एंड ही यूज्ड टू प्रोड्यूस इंग्रेडिएंट्स, जो कुकिंग में इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, जो वेजिटेबल्स स्पाइसेस चाहिए होते हैं, ही यूज्ड टू प्रोड्यूस देम. ओके, इन द मिडल ऑफ अ डेसोलेट लैंडस्केप विथ नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स अराउंड. सो जो एक बहुत ही विजिबली, बहुत ही क्लियरली सबको दिख रहा होता है, जहाँ पे एक डेसोलेट लैंडस्केप. डेसोलेट का मीनिंग क्या है? वेयर नो वन इज अराउंड. एक ऐसी जगह पे, एक ऐसे एरिया में, एक ऐसे लैंडस्केप में जहाँ पे आपको कोई भी नहीं दिख रहा है, और वहां पर कौन दिख जाता है? ईश्वरन क्या कर लेता है? वहां पे कुकिंग इंग्रेडिएंट्स ले आता है. ओके, वहां पर कुकिंग इंग्रेडिएंट्स ले आता है. ओके, डियर स्टूडेंट्स, एक चीज बहुत ध्यान रखने की है. डेसोलेट का मतलब होता है कि वेयर नो वन इज अराउंड. अगर अभी तो हम ये इस एरिया के लिए यूज कर रहे हैं, राइट? ये वर्ड आपने देखा होगा बेगर्स के साथ बहुत यूज किया जाता है, दैट द बेगर वाज अ डेसोलेट. तब क्या मतलब होता है? कि उसका कोई नहीं होता है. ठीक है, तो मीनिंग ये वर्ड जो है इसका बेसिकली होता है जिसका कोई ना हो या जिसके आसपास कोई ना हो, तो मीनिंग यही रहेगा. और ये वर्ड समटाइम्स बेगर्स के लिए भी यूज होता है. बहुत ही कॉमन वोकैबुलरी वर्ड है. प्लीज मेक श्योर ये आपके वोकैबुलरी में ऐड हो जाए, और जब आप इसे यूज करें तब आप कंफ्यूज नहीं होना है. एज अ प्लेस विच इज डेसोलेट मीन्स वेयर नो वन इज अराउंड.
as a human who is desolate means the human has no one to take care of him, or no one is there on whom the human being can depend. Okay, बहुत ध्यान रखना. He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. So, he would miraculously क्या होता है, चमत्कारिक तरीके से conjure up क्या होता है, बना देना. Okay, to make something. ओके, मैजिकली कोई चीज बना देना. सो मैजिकली वो क्या बना देता था, डिलीशियस डिशेस. ओके, बहुत ही टेस्टी डिशेस बना देता था विद इन 1 आवर. ओके, कि मतलब जैसे कहीं नई जगह पर आए, ओके, तो वहां पर आते ही उसने बहुत ही जल्दी से डिलीशियस डिशेस बना दी. Mahendra would be up early in the morning and leave for work after breakfast, carrying some prepared food with him. So, महेंद्र ऑब्वियसली वो सुपरवाइजर है, उसका जॉब है, तो वो उठ के अपनी जॉब के लिए चला जाता था. Meanwhile, Ishwar would tidy up the shed. Tidy up the shed means, tidy I think सबको ही पता होगा, है ना, clean up the shed, wash the clothes and have a leisurely bath. Leisurely का क्या मीनिंग है, without hurry. ओके, सो ईश्वरन बहुत ही leisurely एक बात लेता. ओके, obviously he had no hurry, उसको कोई जॉब पे थोड़ी जाना है, right? So, and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. So आपने देखा होगा कि गांव में भी या कुछ लोग जो रिलीजियस बहुत ज़्यादा होते हैं, वो when they are taking a bath, at that time they mutter a prayer. Muttering का क्या मतलब होता है, to speak in a low voice. बहुत ही धीरे धीरे वो बोलता, एक बुदबुदाता सा था वो एक प्रेयर को. ओके, it would be lunch time by then. After eating, he would read for a while before dozing off. So, after eating, he would read for a while. थोड़ी देर वो पढ़ता था. For a while means for some time, for a short period of time, he used to read and then he used to doze off. Okay? ध्यान रखना, dozing में जो root word है वो है doze. DOZE. Okay? Doze. Okay? So he used to doze off. ठीक है, ये आपका बहुत ही रेगुलर वर्ब है. ING लगाए, डोजिंग हो गया, एंड ED लगाए तो डोज हो गया. ओके, द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू hundreds of pages. सो बुक किस टाइप की होती थी, वो एक तमिल थ्रिलर होती थी. ओके, थ्रिलर आपको पता है क्या होता है, कि एक ऐसी बुक जिसमें बहुत ही एक्शन हो, सस्पेंस हो, एडवेंचर हो, वैसी वो एक तमिल थ्रिलर होती थी. और वो भी कोई छोटी मोटी नहीं, बड़ी hundreds of pages में जो बुक होती थी वो पढ़ता था. Its imaginative descriptions and narrative flourishes would hold Ishwaran in thrall. So, जो उस बुक के अंदर बहुत ही इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस दिए होते थे और जो उसका नैरेटिव फ्लरिशेस होता था, जिस तरह से उसका नैरेटिव चलता था, it would hold Ishwaran in thrall. So in thrall means to have complete control over. तो वो नैरेटिव और वो जो स्टोरी जिस तरह से चलती थी वो ईश्वरन को पूरा कंट्रोल कर लेती थी. ओके, उसके ऊपर अपना कंट्रोल बना देती थी. His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. So अब वो बताने कि जो तमिल ऑथर्स को वो पढ़ता है उनसे इन्फ्लुएंस होकर ही वो बातें भी बताता है. ओके, वो चीजें भी वैसे ही डिस्क्राइब करता है. When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense. Try to work in suspense means कोई उसका सस्पेंस बनाने की कोशिश करता था वो. ओके, ये एक डायरेक्टली एक चीज नहीं बताएगा. ओके, वो डायरेक्टली चीज नहीं बता रहा था, वो सस्पेंस बनाता था. ओके, सीधे सीधे नहीं बताएगा कि राम वेंट टू द मार्केट. पहले वो कहेगा राम woke up,
Then he saw something strange. Then he decided to take care of this strange thing. I must go to the market. तो वो ऐसे बात को घुमाकर सस्पेंस बनाता था. ओके, वो स्ट्रेट फॉरवर्डली बात नहीं बताता था. He would try to work in suspense and a surprise ending into the account. So जो वो account क्या होता है, डिस्क्रिप्शन किसी चीज का. So जो डिस्क्रिप्शन वो बताता था उसमें वो एक सस्पेंस और एक सरप्राइज एंडिंग बनाने की ट्राई करता था. For example, instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, he would say. So वो अगर उसे ये बात बोलनी हो कि he came across an uprooted tree on the highway, ये उसके सामने एक uprooted क्या होता है, जो जमीन से निकला हुआ ट्री है उसको हाईवे पे देखा. वो इस बात को कैसे बताता था? See that. He would say with eyebrows suitably arched. Arched means बिल्कुल उनको कर्व में बना के. ओके, जैसे ये एक्सप्रेशन यू कैन सी, दिस इज कॉल्ड आर्चिंग. मैकडोनल्ड्स की आर्चेस देखिए ना, वो जो एम होता है वो आर्च होती है. ओके, एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक जेस्चर. आईब्रोज आर्च करता था और हैंड्स को एक ड्रामेटिक जेस्चर में, जेस्चर क्या होता है, बॉडी मूवमेंट, ड्रामेटिकली उसको हैंड को ऐसे मूव करता, ड्रामेटिकली ड्रामा क्रिएट करने के लिए, इफेक्ट क्रिएट करने के लिए. ओके, द रोड वॉज डिजर्टेड एंड आई वॉज ऑल अलोन. डिजर्टेड मीन्स कि उस पर कोई नहीं था. ओके, suddenly I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. So उसे कुछ ऐसा दिखा, enormous. Enormous means बहुत बड़ा एक bushy beast दिखा. bushy means झाड़ियों. So ईश्वरन ना ऐसे स्टोरी बताता था बहुत ही हैंड्स को ऐसे मूव करके, that the road was deserted and I was all alone. Suddenly I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. ओके, एनॉर्मस का मीनिंग क्या होता है, बहुत बड़ा. तो उसने ऐसे बता दिया कि कुछ बहुत बड़ा एक राक्षस देखा मैंने, बुशेस वाला राक्षस देखा. ओके, जो कि रोड के ऊपर लेटा हुआ है. I was half inclined to turn and go back. I was half inclined. Half inclined का मतलब क्या हुआ कि मेरा मन में थोड़ा सा था, मेरा एक डिसीजन जो था, वो डिसीजन जो मैं लेता हूँ वो उस तरफ झुका हुआ था. ओके, मेरे मन में हाफ ये था कि मैं जाऊं. ओके, कि मैं वापस चला जाऊं, मैं आगे ना बढ़ूं. बट एज आई केम क्लोजर आई सॉ दैट इट वाज अ फॉलन ट्री विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट. सो अब उसने देखो सस्पेंस यहाँ पे रिवील कर दिया. पहले उसने कहा कि एक बीस्ट था, एक राक्षस था. अब उसने क्या था कि ठीक है, जब मैंने क्लोज आकर देखा, इट वाज अ ट्री दैट हैड फॉलन ऑन द रोड. कितनी सिंपल चीज थी, बट बिकॉज ईश्वरन इज द स्टोरी टेलर, उसने हमें ये चीज कही है, उसने हमें ये चीज बता दी कि रोड के ऊपर सिर्फ एक ट्री था. ओके, उसने देखो ये कितने ड्रामेटिकली बताया ना, उसने ड्रामेटिकली बताया ना हमें कि पहले का बीज था और फिर निकला क्या, जस्ट अ ट्री. Mahindra would stretch himself back in his canvas chair and listen to Ishwaran's tales uncritically. So Mahindra क्या करता, Mahindra would stretch himself back, वो ऐसे खुद को रिलैक्स करता. जो उसके पास चेयर थी, ओके, चेयर किसकी थी, कैनवस की. कैनवस क्या होता है, प्लास्टिक टाइप सब्सटेंस होता है. ओके, जिसका आपने देखा बैग्स वगैरह बनते हैं. ओके, सो कैनवस की चेयर भी थी उसके पास, और वो ईश्वरन की जो टेल्स है, ईश्वरन की जो स्टोरीज हैं, उनको अनक्रिटिकली सुनता. अनक्रिटिकली का मतलब क्या है, बिना उनको क्रिटिसाइज करे सुनता. अब देखो ईश्वरन ने उसको स्टोरी सुनाई, जैसे कि मुझे तो वो ट्री, मुझे पहले बीज दिखा और फिर वो ट्री दिखा. अगर कोई और पर्सन होता वहां पे, वो उस चीज को शायद थोड़ा क्रिटिसाइज कर सकता था. ईश्वरन, यू शुड हैव thought before assuming that it was a beast. इससे पहले तुम समझते कि वो एक बीस्ट है, वो एक राक्षस है. You should have carefully examined it.
okay, or you should have waited for a while to get a good look. तुम वहीं पे खड़े होके एकदम से डरने के बजाय एक अच्छा सा लुक देते तो बहुत तरीके से क्रिटिसिज्म दिया जा सकता है, बहुत तरीके से क्रिटिसाइज किया जा सकता है, बट महेंद्र वुड लिसन अनक्रिटिकली। ओके, महेंद्र की जो आदत थी वो ये थी कि वो बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं करता था और बिना क्रिटिसाइज करे सुनता। ओके, so dear students, today we will read till here only. Now, if you have any doubts, you can ask them in the Gaisala class, uh, or you can give me a call or send me a message. But make sure you must raise your hand if you don't understand. Okay? I hope today's lesson is clear to you. And dear students, one more important thing, although I have repeated it in the beginning of the class as well, but once again I'm going to tell it to you, that is submit your notebook. If you have not submitted your notebooks, please come to school and submit your notebooks. Thank you, dear students. Have a great day ahead.